मुझे लगता था कि वो लोग फाइनेंशियली लिटरेट रहेंगे, बट वो लोग एकेडमिकली लिटरेट है, एंड एकेडमिक लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो वो जब फर्स्ट क्लाइंट की खुशी होती है ऑब्वियसली वो तो अलग ही रहता है। करेक्ट। जब भी फर्स्ट क्लाइंट आया तो घर पे आके वाओ मैंने एक दिन में इतना क्लाइंट जमा कर लिया ये पैसा, तो अभी इससे ये होगा। जो भी पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म गोल्स है वो लिख लो, एंड उसमें कितना पैसा लगेगा उसका जो प्रोविजनिंग होना चाहिए वो आपका पूरा इक्विटी साइड ही जाना चाहिए। वो आपको फर्स्ट 5 years भूल जाना है। सबसे ज़्यादा वेल्थ किसने क्रिएट किया है, तो दो ही टाइप के इंडिविजुअल्स हैं। एक है जो लोग का कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेटेड ही नहीं था, ना पैन, ना आधार, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल आईडी, ना एड्रेस, कुछ भी अपडेटेड नहीं था। अभी वो लोग को कम्युनिकेशन ही नहीं आया और पता ही नहीं था, भूल गए थे वो लोग एसेट। और दूसरे थे जिनका डेथ हो गया, उनके इनहेरिटेंस जो भी रह गए उनको पता ही नहीं है कि एसेट क्या है। Hello guys, I2I is coming up with one more podcast with Symphony FinServ headed by Rahul Sanghvi. I am your host CA Vishal Mehta. Please follow my YouTube channel Startup Journey and also Rahul Sanghvi's YouTube channel Symphony FinServ, and also follow our Instagram handle PBS Solution. Thank you. Hello everyone, I am CA Rahul Sanghvi, founder of Symphony FinServ, and I am going for the first time on a podcast with CA Vishal Mehta, who will be hosting me, and he has his own company known as Profiting Business Solutions. He runs the podcast series named as I2I, and I would urge everyone to follow his YouTube channel named as Startup Journey, as well as my YouTube channel named as Symphony FinServ. Welcome to one more episode of I2I, that's Idea to Impact, where we call startup founders who just had an idea to work with and have already started making impact in their own industry. I am your host CA Vishal Mehta with my own startup Prophetic Business Solutions Private Limited, which deals with virtual CFO services and international tax restructuring. Today we have a very young guest with us, Mr. Rahul Sanghvi, who has his own startup Symphony FinServ, which deals mainly into mutual fund distribution. Welcome to the show, Mr. Rahul. Glad to have you here. Thank you, Vishal bhai. Yeah. So just like we ask every young founders that about their journey, your journey till date is, of course, you have cleared your CA exam and also CFA level 1. And what made you start this Symphony? Because it seems with your age that you have straight away jumped into the business world and never tried to do job. Is that right? Yes, that is true. So basically my background was from schooling. I was good at practical subjects, majorly maths. Yeah. So I was sure that I will do something in commerce. Science तो option ही नहीं था. Correct. So when I started in commerce, options कौन से fields है, तो सबसे अच्छा field CA लग रहा था. बरोबर. So I enrolled for CA, and during the journey मैं CA का पढ़ने के टाइम पे जब भी आर्टिकलशिप था तो उस टाइम पे ही आई सिलेक्टेड फिनेंस का इंटर्नशिप कुछ करना है, फिनेंस पे सीखना है. सो एंटायर आर्टिकलशिप मैंने फिनेंस में ही किया है, एक्सपोजर उसका ही लिया. करेक्ट. जब भी CA का अटेम्प्ट था, दैट वाज इन कोविड, मई 2020 अटेम्प्ट था, एंड मार्च में लॉकडाउन आ गया एंड अटेम्प्ट्स आगे पोस्टपोन होते रहे. तो मेरा अटेम्प्ट एक्चुअल में नवंबर 2020 तक शिफ्ट हुआ, एंड नॉर्मली 4 months पढ़ने का भी बहुत हेक्टिक होता है, तो वो 10 months तक स्ट्रेच हो गया. उसके बाद मैं बोला अभी तो घर पे नहीं बैठना है. आई ट्राइड जॉब ढूंढने का उस टाइम पे जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, बट नॉर्मली सब जगह से एक ही रिवर्ट आता था कि आपका CA का रिजल्ट आएगा, CA बन जाओगे पक्का हम लोग ले लेंगे. अभी वो रिजल्ट को 2 महीना था. आई वॉज नॉट ओके कि मैं 2 महीने तक और घर पे बैठूं. सोचा उससे बेटर कुछ खुद का ही करता हूँ. बीइंग कुछ जो ऐसा खून में था कि कुछ खुद का ही करना है. सो डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया. कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा स्टक नहीं था पहले से कि वही करना है, बट मैंने खुद को एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे कोई फाइनेंस का बंदा आके कुछ पिच करेगा, कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं, या तो ईच एंड एवरी वन बीइंग फाइनेंशियली लिटरेट, कौन क्या प्रोडक्ट बाय करेगा. तो 2-3 प्रोडक्ट्स ही अच्छे दिख रहे थे. फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस बाय करना अच्छा लग रहा था, बट लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, दूसरे पॉलिसीज उतने अच्छे नहीं लग रहे थे.
सो वैसे दूसरे प्रोडक्ट्स थे, बट म्यूचुअल फंड वैसा प्रोडक्ट था जिसमें हर एक यूज़ केस, हर एक कस्टमर को मैं इजीली कन्विंस कर सकूँ, कि why it उनको is बेनिफिट दे सकूँ, वो दिखा। एंड इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। अभी मुझे एक ही प्रोडक्ट करना था, बिकॉज माई बिलीफ इज एक प्रोडक्ट लेके स्केल अप करना इज बेटर देन हैविंग अ बुके, 10 चीज़ रखूँ एंड उसको स्केल अप करूँ। एक चीज़ पे फोकस करके स्केल अप करना था। वाओ। डैड भी थोड़ा यही इंडस्ट्री से, फिनेंस से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी थोड़ा नॉलेज था, उनको उनका बिजनेस था, तो उनको हेल्प करता था। 10th के बाद ही आई स्टार्टेड कि उनको जो फिजिकल सब कुछ करते थे उनको ऑनलाइन शिफ्ट करवाया, अकाउंटिंग में हेल्प किया, बैंकिंग में हेल्प किया। तो थोड़ा फाइनेंस का नॉलेज उधर से भी था, जो पेरेंट्स की वजह से एंड पापा के बिजनेस की वजह से आया था। एंड इसीलिए ये सिम्फनी फिन से स्टार्ट कर दिया। Wonderful, wonderful. So you happen to be third mutual fund guest in my show, and how different your viewpoint is. So you would like to know, like just इससे पहले, and I'm not saying who is right, who is wrong, but just a different thought. So that guy said specifically that you should have each and every product in the basket, from both point of view, as a like from our side, one who is investing or one who is approaching the him, and from the one who is distributing also, he should have every thing in the basket so as to offer, versus you are saying, so I would of course like to know something more about that mindset. सो आई फील, सी कोई भी बिजनेस करना कुछ गलत चीज़ नहीं है। Correct. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। वो कंपलसरी प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो मत करो। Correct. बट मेरा पर्सनल व्यू है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, आई फील अगर एक प्रोडक्ट लेके स्केल अप किया ना, तो वो स्केल अप करना, एक्सपर्टीज भी आता है, एंड या करेक्ट, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू मैं सब कुछ बुके, बहुत सारे बिजनेसेस देख रहेंगे सब कुछ बुके रखते हैं, बट एक अगर चीज़ स्पेशलाइज करके उसको स्केल अप किया ना, तो वो आई थिंक ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया देता है। तो इसीलिए वो पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम ओनली इनटू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। Perfect. No, I completely agree to that mindset, and I'm sure what it's 4 years. 4 years, So yes. you have scaled up quite good, and you will continue to scale up. So how you measure scaling up in your business? Is the AUM you manage? Am I right? So yes, if you just ask me quantity wise या number wise, so Correct. it is number of clients and AUM. Currently I have more than 400 plus clients and Very good. around 35 CR plus का AUM which I am managing. Okay. So if numbers wise manage करना है तो हाँ 100% That's that is how the you measure. metrics. Correct. But how I measure my success is how many people I am actually helping. Yeah, that's how it बिकॉज should. माई कोर फिलोसॉफी इज मनी तो कंपलसरी है हर एक बिजनेस में। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा अर्न नहीं करना है, Correct. इट इज़ ब्रेड बटर, जिससे घर चलेगा, जिससे ऑफिस चलेगा, दैट इज नीडेड। बट उसके अलावा एक और चीज़ होना चाहिए, दैट इज हाउ मच वैल्यू यू आर डिलीवरिंग टू द क्लाइंट्स। yeah. इफ वो हुआ तो स्केल अप करना बहुत ईजी हो जाएगा। Correct, correct. सो आई मेजर कि मैं एक्चुअल में लोगों में कितना डिफरेंस ला रहा हूँ, कितना Yeah. फाइनेंशियल लिटरेसी ऐड कर रहा हूँ। Correct, correct. And that's that how, to some extent, both of us have similar business. More you educate clients, some success is success in terms of converting them to your client monies के measurement में can never be 100%. जितनों को educate किया सब जन आपके पास client बन गए ज़रूरी नहीं. But you keep on, because that also is one of the purpose why you started. Similarly, like my name itself is ends with solution. Why? Because we are here to provide you solution. Money comes as an exchange because we are not operating like a trust. So of course it's a business. But I completely agree. So it's not a long journey. So आपको आपका first client तो याद होगा. So वो dad के contact से आया था या completely your नहीं, सो बीइंग इन द सेम इंडस्ट्री मैंने फर्स्ट डे सोचा था कि मुझे खुद कुछ अलग लाइक अलग से क्लाइंट बेस सेट करना है, कुछ अलग मॉडल से ऑपरेट करना है, सेम वे से सब कुछ नहीं करना है। सो फर्स्ट क्लाइंट ऑब्वियसली फ्रेंड्स थे, बराबर। एंड आज भी मेजॉरिटी क्लाइंटल जो आया है वो मे बी फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के कनेक्ट से आया है। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। CA की जर्नी के टाइम ही
मेरा एक मानना था कि म्यूचुअल फंड्स में सीएस को ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी रहता है, तो सीए क्लाइंट बनेगा ही नहीं। बट जब भी जर्नी स्टार्ट किया, फर्स्ट डे तो ऐसा ही था कि एक भी सीए मेरा क्लाइंट नहीं बनने वाला, मुझे नॉन सीएस ही ढूंढना है। एंड मेरा मेजर कनेक्शन वॉज सीएस, बिकॉज क्लासेस, एग्जाम सब कुछ सीएस के साथ ही रहा था। स्टार्ट्स विद दैट, या बट पता नहीं आज के दिन पे 400 में से मोर देन 50% क्लाइंट्स आर सीए। so my investments are with it's not that you same mindset जो आप बोले, फोकस वो टूट जाता है ना अगर हम हमारे कोर में से इसमें फोकस चले जाए। ऑफ कोर्स सम पीपल आर इंटरेस्टेड, नहीं मैं खुद ही मैनेज करूंगा, बट मोस्ट ऑफ देम प्लस आई एम श्योर यू विल आल्सो गेटिंग थ्रू दैट सीएस। ट्रू, आई एम गेटिंग दैट इज द पॉइंट कि वो सीएस क्यों क्लाइंट बन रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता था कि वो लोग फाइनेंशियली लिटरेट रहेंगे, बट वो लोग एकेडमिकली लिटरेट है। एंड एकेडमिक लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इफ़ यू चेक, आज बहुत सारे सीएस भी है जो बोलते रहेंगे कि एफडीज उतने अच्छे नहीं है, एफडीज में क्या ही रिटर्न मिलता है, और फिर वो लोग जो लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट पॉलिसीज है वो बिंदास बाय करते हैं। वो लोग सालों के लिए 5% पे उधर इन्वेस्ट करने रेडी है। सो आई अंडरस्टूड कि नहीं भाई, फाइनेंशियल लिटरेसी अलग है एंड एकेडमिक लिटरेसी अलग है। सो मैं उनको भी लिटरेट करने लगा, उन लोग को भी एक्सप्लेन करने लगा कि क्या प्रोडक्ट्स है, क्या उसके फीचर्स है। एंड खुद सीएस क्लाइंट सबसे इजीली बने, बिकॉज वो लोग को कॉन्फिडेंस था। मैं क्लासेस में फाइनेंस में अच्छा था, एसएफएम में अच्छा था, तो उन लोग को कॉन्फिडेंस पहले से था। सो बिकॉज ट्रस्ट बिल्ड था, तो इजीली वो लोग क्लाइंट्स बन सके। एंड देन द अदर्स को अप्रोच करते वक्त यू हैव ऑलरेडी सम बैकग्राउंड एंड देन यू कैरी ऑन फ्रॉम दैट। ऑफ कोर्स सो वो जब फर्स्ट क्लाइंट की खुशी होती है ऑब्वियसली वो तो अलग ही रहता है। करेक्ट। जब भी फर्स्ट क्लाइंट आया तो घर पे आके वाओ, मैंने एक दिन में इतना क्लाइंट जमा कर लिया, ये पैसा तो अभी इससे ये होगा। बट नो डाउट द जर्नी वॉज डिफरेंट, कि वो फर्स्ट डे जो आया वही सेम चीज़ हमेशा नहीं आने वाला है। करेक्ट। अप्स एंड डाउन सब आए, बट फर्स्ट क्लाइंट्स तो फ्रेंड्स ही थे। एंड वो एक खुशी अलग थी कि फ्रेंड्स को कन्वर्ट कर लिया क्लाइंट्स में। वो लोग ने ट्रस्ट किया एंड पैसा दिया, इन्वेस्ट किया। So I am happy for that thing. Because in spite of being friend, जब पैसे का बात आता है लोग प्रॉपर जज करके ही देते हैं। So tell me how you go about approaching clients, like कि चलो एक लीड आया या रेफरल आया या आपने किसी को अप्रोच किया, then how, what's the process of your company to onboard the client and how you go about it? So there are two types of clienteles. One is corporates and one is individuals. Correct. दोनों का पूरा स्ट्रैटेजी अलग है। Whom should I start with? दोनों कॉर्पोरेट में ऑफ कोर्स मैं और जानना चाहूँगा टू सी हाउ आई कैन हेल्प यू, बिकॉज आई एज यू वुड हैव हर्ड इन माय इंट्रोडक्शन डील विद VCFO सर्विसेज, सो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू नो दैट आल्सो. So first I'll start with individuals. In case of individuals, normally I first टेक द बैकग्राउंड अबाउट द क्लाइंट. नॉर्मली सबको लगता है कि मैंने आपको बोल दिया 20,000 का SIP चालू करना है, चालू करवा देना है. आई डोंट टेक क्लाइंट्स वैसे, कभी भी एक भी क्लाइंट वैसे नहीं लूँगा कि आपने बोल दिया इतना SIP चालू करना है, बस ऐसे ही चालू करवा दिया मेरे अर्निंग्स के लिए. मैं पहले उनका बैकग्राउंड जानूंगा कि उनके फैमिली में कौन कौन है, उनके गोल्स क्या क्या है, उनका कैश फ्लो कैसा है, एंड उनके अभी तक इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे है, उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है. इसको रिस्क प्रोफाइलिंग बोलते हैं. उनका प्रॉपरली रिस्क देख के कि क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अभी क्या रिस्क ले रहे हैं, एंड उनको गोल्स मीट करने के लिए कितना रिस्क लेना पड़ेगा. उसके बेसिस पे उनको एक असेट एलोकेशन देता हूँ कि आपको करेक्ट असेट एलोकेशन क्या रहेगा, वो असेट की क्या रिस्क रिवॉर्ड है. इफ आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन से प्रोडक्ट में कितना रिस्क है, आपका जर्नी बेटर कैसे हो. वैसा नहीं है कि अगर आपने इक्विटी में मेरे थ्रू इन्वेस्ट किया आपको लॉस नहीं होगा, वैसा तो नहीं है, क्योंकि इक्विटीज एज अ प्रोडक्ट ही वैसा है जहाँ पे कभी ना कभी शॉर्ट टर्म में लॉस होएगा, बट वो प्रोडक्ट को हमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है. तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स है तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में ही जाओ, लॉन्ग टर्म गोल्स है इक्विटी में जाओ, बट पहले से समझ लो कि इतना रिस्क है, उसमें आपको ये लॉसेस भी देखने को मिलेगा. तो वो देखने के टाइम पे आपको खुश रहना है, नॉट कि उस टाइम पे देख के अरे डर जाना है. करेक्ट. सो वो जर्नी बेटर कैसे हो उसके लिए पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करता हूँ. नॉर्मली उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, बिकॉज जब भी क्लाइंट्स को पूछता हूँ हर एक डिटेल्स, उनको भी आधे टाइम पता नहीं रहता, अरे ये भी गोल है, हाँ मेरा तो ये भी गोल है. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं रहता है कि इतने गोल्स है और उसके लिए उनको इन्वेस्ट भी करना चाहिए या सोचना भी चाहिए. तो जब भी वो सब जानता हूँ उसके बाद मैं उनको एक बार प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि आपको ये सब प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स के ये रिस्क रिवॉर्ड है,
एंड आपको ये पर्टिकुलर गोल के लिए नॉर्मली ये एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए. अभी आप डिसाइड करो आपको कौन से प्रोडक्ट में जाना है, कितना आपका कंपैटिबिलिटी है, एंड देन आई वुड सजेस्ट देम कि आपको अगर इसमें करना है ऐसे इन्वेस्ट करो, ये कैटेगरीज है, एंड देन क्लाइंट्स के साथ ही डिस्कस करके वो फाइनल होता है. करेक्ट. एंड देन द नेक्स्ट कॉर्पोरेट. या सो कॉर्पोरेट्स में इट इज़ ओनली ट्रेजरी मैनेजमेंट. उनका शॉर्ट टर्म मनी रहता है. नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में क्या है कि उनके करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है एंड उनको बैंक से कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहा है. आजकल थोड़ा स्वीप एफडी का कंसेप्ट आ रहा है, बट स्वीप एफडी में भी आपको अच्छा रिटर्न्स तभी मिलेगा 6-7% का इफ़ यू चेक वो 6 महीने तक अगर पैसा आपका इन्वेस्टेड रहा तो ही. अदरवाइज आपको बहुत नॉमिनल रिटर्न्स. मुझे तो वो बेनिफिट वर्सेस ऑफ कोर्स देयर इज नो कॉस्ट एसोसिएटेड, बट हाउ कॉम्प्लिकेटेड द बैंक स्टेटमेंट बिकम्स नॉट फॉर अस, बट जो मेरा स्टाफ उसको मैनेज करता है वेदर इट्स वर्थ इट कि नहीं वो भी, बट इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. योर पॉइंट इज ट्रू. अभी मैंने नॉर्मली देखा है कॉर्पोरेट्स को पता ही नहीं है उनको पैसा कब लगेगा. हाँ. वो आपको भले कुछ भी बोल दे कि मैं 2 महीने के बाद लगेगा, उनको 20 दिन बाद भी अचानक पैसे का जरूरत आ जाएगा. तो नॉर्मली हम लोग उनका शॉर्ट टर्म ट्रेजरी मैनेजमेंट ही करते हैं एंड दैट इज ओनली थ्रू फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स. उनको कहीं इक्विटी या वैसा कुछ नहीं करते. एंड उधर मेन गेम इज ओनली अबाउट सर्विस. उधर क्योंकि उनको जब पैसा चाहिए, अगर कल पैसा चाहिए, आज के आज विड्रॉ करवा के वो टाइमलाइंस मीट करवा के उनको बैंक में पैसा चाहिए ही रहेगा उस दिन. उनको वैसा एक दिन का डिले भी नहीं चलेगा, बिकॉज कॉर्पोरेट्स अलग वे में पूरा फंक्शन करते हैं. तो उधर हम लोग लिक्विड फंड्स होते हैं, एक कंसेप्ट है, एंड आर्बिट्राज फंड्स है, उसके थ्रू उनको उधर इन्वेस्ट करवाते हैं. उनको फर्स्ट डे ही मैं फर्स्ट 5 to 10 डेज ऑनबोर्डिंग के टाइम पे मैं एकदम एक्सटेंसिवली क्लाइंट जो भी कॉर्पोरेट रहेगा प्लस उनका फाइनेंस टीम रहेगा, उनको प्रॉपरली समझा देता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स है उनके क्या रिवॉर्ड है और क्या रिस्क है या कितने मिनिमम टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए. आप मिनिमम 2 दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसा नहीं है कि नहीं कर सकते. एंड उधर आपको रेपो रेट जितना रिटर्न्स मिलता है. अंडरस्टूड. तो उधर 5.56% 2 दिन के लिए भी CAGR मिलता है जो उनको नॉर्मली बैंक्स में नहीं मिलता. मच बेटर. एंड उनका वॉल्यूम्स बहुत बड़ा रहता है. आता भी जल्दी है, जाता भी जल्दी है. तो उधर सर्विसिंग अच्छे से ध्यान देना पड़ता है. पहले मैं उनको ऑनबोर्ड करवा देता हूँ. जब भी पिच करता हूँ तो उनको सिर्फ ये एक्सटेंसिवली 3 प्रोडक्ट्स के बारे में समझाता हूँ, जो लिक्विड साइड है एंड ओवरनाइट साइड पे. एंड फिर उन लोग को प्रॉपर प्रोसीजर समझा देता हूँ कि कैसे इन्वेस्ट होगा. पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर ही रखा है मैंने. फर्स्ट डे से बिजनेस मॉडल वैसा ही रखा है कि कोई भी चीज़ हो मुझे ऑनलाइन ही रखना है, फिजिकल कुछ नहीं रखना है. सो उनको एक ग्रुप बन जाता है मेरी टीम का, कॉर्पोरेट का और उनकी टीम का. एंड फिर उसके थ्रू एकदम हैसल फ्री. आज भी फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में कहीं ना कहीं कोई कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन चलता रहेगा, बिकॉज उनके ट्रांजैक्शन हर 2-3 दिन में एक ना एक आते हैं. सो वो लोग जब भी बैंक में पड़ा है मुझे बोल देंगे कि इतना है, इतना मुझे इन्वेस्ट करना है. एंड जब भी उनको पैसा चाहिए रहेगा वो लोग मैसेज डाल देंगे ग्रुप पे कि हम लोग को इतना पैसा चाहिए कल, उतना हम लोग विड्रॉ करवा के उनको बैंक में दिलवा देते हैं. So I have been VCA for various companies, including some foreign companies. Liquid fund सुना है, sweep in, sweep out. Arbitrage सुना है, but have never tried it. So I would like to know a little bit more about arbitrage. So arbitrage fund कैसे? Arbitrage as a concept क्या होता है? Arbitrage is risk free profit. आज आपने बुक किया, but realize आपको later date पे होगा. Correct. नॉर्मली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो आर्बिट्राज फंड होता है ना, वो लोग 1 मंथ के एक्सपायरीज इंडिया में चलते हैं स्टॉक्स के, तो 1 मंथ के एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं. तो वो लोग आज ही प्रॉफिट बुक कर देते हैं, बट वो रियलाइज हो गए 1 मंथ के बाद. तो इसीलिए ये सब प्रोडक्ट्स में नॉर्मली 1 मंथ का एग्जिट लोड रहता है एंड 1-2 मंथ्स का टाइम फ्रेम रहेगा तो ही उसमें जाना चाहिए. वो करते क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने HDFC बैंक खरीदा, आज स्टॉक 2000 पे ट्रेड कर रहा है, वो लोग ने HDFC बैंक का स्टॉक परचेस कर लिया एंड उसका ये फ्यूचर्स 2020 में सेल हो रहा है, 2020 का सेल हो रहा है. तो उन्होंने वो फ्यूचर सेल कर दिया 1 मंथ डाउन द लाइन का, तो उनको 20 रुपीज प्रॉफिट आज ही कंफर्म हो गया. वैसा नहीं है अभी वो प्रॉफिट बढ़ सकता है या कम हो सकता है. 20 रुपीज वो हेज कर दिया है वो लोग ने आर्बिट्राज के थ्रू, बट वो रियलाइज होना है 1 मंथ के बाद. अभी 1 मंथ के बीच में दोनों का प्राइसेस मूव हो सकता है. तो मे बी 10 दिन के बाद आपने विड्रॉ किया तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट उसमें फिक्स्ड रिटर्न है. अगर आपने 1-2 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहा तो मैं पहले ही क्लाइंट्स को बोल देता हूँ कि 2 मंथ्स का मिनिमम टाइम फ्रेम रहेगा तभी आर्बिट्राज में आओ. इसमें मेन एडवांटेज क्या है, आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है, बिकॉज ये इक्विटी मार्केट के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है. इसमें टैक्सेशन इक्विटी का लगता है. सो कभी कभी कॉर्पोरेट्स का कैसा रहता है, वो फंड्स उनको पता भी नहीं रहता है कि वो उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है, बट वो लोग वो कमिटमेंट देने रेडी नहीं है कि मैं 1 साल तक रखूंगा. हाँ, सो वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, उतना बोलते हैं कि 1 मंथ एटलीस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, चलो आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करवा दिया. और उसके बाद वैसे भी केस आया कि उन लोग ने 1 मंथ इन्वेस्ट किया,
बोला था, बट वो लोग का 1 साल से अभी तक पैसा पड़ा ही है, बिकॉज वो लोग ने दूसरा फंड्स भी ऐड किया लिक्विड में और वो विड्रॉ किया, बट ये आर्बिट्राज वैसा का वैसा पड़ा रहा, और 1 ईयर के बाद उसमें इक्विटी टैक्सेशन लगता है, तो आपको 12.5% टैक्सेशन में आप फ्री हो जाओगे। उसमें लिक्विड जितने ही रिटर्न है, वैसा नहीं है कि बहुत हाई रिटर्न है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट ही है, बट इवेंचुअली टैक्सेशन बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है कॉर्पोरेट्स को, तो इफेक्टिव रिटर्न बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक कॉर्पोरेट है जिसका दे हैड स्टार्टेड वर्किंग सिंस लास्ट में, सो अराउंड 1.5 ईयर हुआ, 14-15 मंथ्स हुआ रहेगा इन्वेस्ट करके। उनका अभी तक का प्रॉफिट इज 30 lakhs ओनली एंड ओनली। कॉर्पोरेट का ट्रेजरी मैनेजमेंट जो है, शॉर्ट टर्म मनी मैनेजमेंट से 30 lakhs जितना प्रॉफिट है, और मेजर पैसा आर्बिट्राज साइड पे है। अंडरस्टूड। विड्रॉ भी किया है बीच में, वैसा नहीं है नहीं करवाया, 50 lakhs 1 CR 2 CR विड्रॉ भी किया रहेगा, बट 30 lakhs का जो प्रॉफिट है, अगर हम लोग उस पर गिने टैक्सेशन डिफरेंशियल, तो अगर लिक्विड में रहेगा तो 25% टैक्स लगेगा कॉर्पोरेट है तो, एंड वही सेम इधर 12.5%, सीधा 50% टैक्स बच जाता है। 7.5 लाख टैक्सेशन लिक्विड में आएगा और आर्बिट्राज में उसको 3.75 lakhs में वो फ्री हो जाएगा। सो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। Understood. So this is arbitrage funds. So nice. So I may think of few referrals for you in that regards also. So tell me, you mentioned something about team also. So क्या strength है अभी आपका team? So currently I have 2 people under me. Okay. And because मैंने online model रखा है, so उतना workforce heavy model नहीं है मेरा, being in service industry, but I take like I think of Symphony as my kid. वो मेरा बच्चा है, एंड मैं उसके लिए कैसे करके बेटर वर्क एनवायरनमेंट बना सकूँ, मैं टीम को कैसे बेटर स्ट्रेंथन कर सकूँ इन केस ऑफ नॉलेज। लाइक इवन इफ वो लोग फाइनेंस के लिए, लाइक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लोग एग्जीक्यूशन पार्ट संभालते हैं, बट फिर भी हम लोग ने एक ट्रेनिंग सेशन नहीं बोल सकते, मैंने ट्रेनिंग तो सी ऑन ग्राउंड चलते ही रहता है, बट उसके साथ बुक रीडिंग सेशन काइंड ऑफ बोल सकते कि कंपलसरी हम लोग की टीम में हर एक जन को कोई ना कोई एक बुक रीड करना है, एंड हम लोग टारगेट्स बना देते हैं कि दिन का 5 पेज अगर रीड करना है, तो हम लोग समझो 10 दिन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट डिसाइड कर दिया कि उस दिन पे बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स। तो आपको मैंने 50 पेजेस का टारगेट दे दिया, मैंने खुद को भी एक टारगेट दिया रहता कि मुझे भी वो 50 पेजेस रीड करना है, एंड हर एक जन वो बुक रीड करके आएगा उस दिन, एंड आपने जो बुक रीड किया रहेगा आप वो एक्सप्लेन करोगे, मैंने जो बुक रीड किया मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट सभी के लिए वो एक साथ 3 बुक्स रीड हो गया, उनको उसका नॉलेज मिल गया। सो नॉलेज अपडेशन इज समथिंग व्हिच आई वर्क ऑन एवरी डे। एआई, सब लोग एआई से बहुत डरते हैं, आई फील एआई से अडेप्ट होना है, so मैं उनको भी ट्राई करता हूँ कि कैसे एआई आप ज्यादा सीखो, आप एआई के टूल्स यूज करो, 100%. जो हो सकता है काम सिंप्लीफाई करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 आवर्स अगर वर्क टाइमिंग्स है, आप 2 आवर्स में कंप्लीट कर लो, और 5 आवर्स चिल करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपग्रेड करो खुद को कि कैसे वो 2 आवर्स को भी 1.5 आवर्स पे लेके जा सको। सेम कल्चर है, बिकॉज see then the pressure is on us to bring more work. Until we don't bring work, you execute your work, play smart. That's how it should be, because owner's job is to bring work and team's job is to execute. How smartly they can execute, it's true. Agreed. AI, and the main thing is it's gone beyond just ChatGPT. There are many specific tools for specific things. So I completely agree. And आपका तो finance industry है, so of course you need to adapt. So now the corporate finance where you mentioned, तो सबके अपने बैंक अकाउंट होंगे, राइट? करेक्ट. सो मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, क्योंकि बैंक्स तो तुरंत अप्रोच करती है क्लाइंट को, अरे आपका इसमें, समटाइम्स दे डू, डिपेंड्स ऑन बैंक्स की भी कितनी टीम कितनी एजाइल है, बट देन डू यू कम अक्रॉस दैट एज अ हर्डल कि वी डोंट नीड अ सेपरेट गाय, हमारे तो बैंक ही है? सो सी डे इन डे आउट आप बिजनेस में क्लाइंट्स को पिच करते हो, एंड कोई सक्सेसफुल होते हैं, कोई नहीं होते हैं, सो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. कोई होते हैं जो मुझे ये सब मगजमारी नहीं करना, हर टाइम मुझे NEFT करना या पेमेंट करना नहीं है, वो स्वीप इन स्वीप आउट से खुद ही हो रहा है, फिर भले मुझे इंटरेस्ट कम मिल रहा है, सो रहते हैं. सो आई डोंट वांट कि ईच एंड एवरी पर्सन मेरा क्लाइंट बने. मेरा विश रहेगा, बट फिर भी इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो जो क्लाइंट बन रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट,
आई एम नॉट सेइंग उन लोग का शायद कुछ अलग रिक्वायरमेंट रहेगा, किसी को कोई अकाउंटिंग, उसके पास अकाउंटेंट्स का मेजरली इशू रहता है पूरे इंडस्ट्री में, तो बोलेगा इतने एंट्रीज का मैं अकाउंटिंग नहीं करूँगा, उससे बेटर मेरे बैंक में पड़ा है, ना स्वीप इन करना है ना मुझे ये करना है। बहुत लोग रहते हैं उनको वो अकाउंटिंग हैसल से बाहर आना है, भले वो फिर उनको कुछ अर्न फाइनेंस करना वाइज सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, यू हैव टू ट्रू take care of each and everyone. So tell me, Rahul, I know it's a short period of time, but any success story of your client we would like to share? So in short term period, if we see, corporates are actually coming for short term investing only. So corporate side तो बहुत सारे success stories है. We helped corporates earn maybe 30 lakhs. एक corporate को earn करने दिया, वो तो मैंने बोला. दूसरे corporate को 12-15 lakhs के बीच में earn करने मिला है. तीसरा एक corporate है 20-25 lakhs के बीच में earn किया. So that is because वो लोग का ongoing transaction होता है, purchase sell दोनों होता है, and उन लोग का profit होता है. Individual side पे success story सबसे ज़्यादा I feel happy when, और I feel successful when कोई एक वैसा पर्सन रहेगा जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं या उसका बैकग्राउंड ही नहीं है, एंड उसको एक्चुअल में मैंने हेल्प किया कि आपको क्या करना चाहिए. कितने लोग वैसे भी है जिसको मैंने इंश्योरेंस बेचा नहीं है, बट उनको गाइड किया कि आपको इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए आपके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर. वो भी एक सक्सेस हो सकता है. Of course. या तो कोई है जो मे बी 1 लाख रुपीज़ का सैलरी अर्न कर रहा है, उसको घर पे कुछ खर्चे नहीं है, बट उसको पता नहीं है वो 1 लाख इन्वेस्ट कहाँ करे. वो एडॉक बेसिस पे 10-20,000 का SIP कर दिया, 10-20,000 RD में दे दिया, 10-20,000 गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया. उससे बेटर उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कि उसको एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वो गाइड किया और इन्वेस्ट करवाया. इट कैन बी उसने वेकेशन के लिए कभी कुछ प्लान नहीं किया था, वेकेशन के लिए भी इन्वेस्ट करवाया, और जब भी वो घूमने गया उसको वो पैसे में से विड्रॉ करवा के यूज किया उसने. उसका छोटा गोल मीट करवाना भी सक्सेस है. एंड उसको नॉर्मली क्या लगता था कि उसने बड़ा फॉरेन ट्रिप लिया ही नहीं था, तो उसको लगता था 1-1.5 लाख का खर्चा होता था. उसको जब ब्रेक डाउन करके महीने का 10,000 सेव करवाया और फिर उसको जब भी उसमें से विड्रॉ किया, उसने बोला हाँ यार अभी उतना स्ट्रेस नहीं लग रहा है कि मैंने फॉरेन वेकेशन किया एंड मजे किए उधर. तो वो भी एक सक्सेस था मेरे लिए. ट्रू. Yes, of course. There are many small success stories. And because last 4 years में markets have been grateful. There are people जिसने first second year में मुझे लमसम दिया था, से मे बी 1 CR का लमसम दिया था, एंड उनको 2 years बैक एक घर लेना था, तभी 1.5 CR हो गया और उन्होंने विड्रॉ कर लिया. माइट भी वो भी एक सक्सेस था. Yeah, of course, why not? So उधर रिटर्न्स अच्छा मिला फंड्स में, एंड हम लोग अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर सके. उसको परचेज करवाने के टाइम हैसल नहीं आया, उनको रिडेम्पशन 2 दिन में मिल गया, जब घर खरीदना था तभी उनको वो पैसा मिल गया. So that is also a success for us. नहीं. I'm sure you will have many more success stories because अभी तो आप यंग हो और जर्नी में एक अच्छी हैबिट भी है. You and your team keep learning, so उसकी तो कोई एंडलेस स्टोरीज होंगी आपके पास. I feel क्लाइंट्स के सक्सेस से ज़्यादा मुझे वो सक्सेसफुल लगेगा जब भी मेरी टीम को मैं नॉलेज अपडेट कराते रहूँ. सो वो लोग जब भी खुश है, नो डाउट द फर्म विल स्टे हैप्पी. सो दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस. दे आर योर हैंड्स, राइट. कंप्लीटली एग्री. सो टेल मी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंस में होती है, बट इफ़ यू आर टू पिक टॉप 2 की सबसे ज़्यादा ये एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है या लोगों का ये एस्पेक्ट चेंज होना चाहिए, तो आई फील टॉप 2 भी नहीं, टॉप 1 थिंग इज सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज बिहेवियरल इन्वेस्टिंग. ओके. विच इज समथिंग जिस पे मैंने पूरा मेरा प्रैक्टिस ग्रो कर रहा हूँ, बेस किया. ओके. नॉर्मली सब रिटर्न बेस्ड इन्वेस्टिंग के पीछे भागते हैं. मैं रिटर्न देखता हूँ क्या है और उसके हिसाब से फंड सेलेक्ट करता हूँ. मुझे ये बिहेवियर लोगों का समझता ही नहीं. एंड पहले मुझे ऐसा लगता था कि लोगों का बिहेवियर ही शॉर्ट टर्म एंगल से है कि सब चीज़ में वो लोग शॉर्ट टर्म ही देखते हैं, बट वैसा नहीं है. वो लोग जब भी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं तभी वो लोग शॉर्ट टर्म सोचना चालू करते हैं. आपने कोई LIC पॉलिसी लिए रहेगा, आप 20 साल से प्रीमियम भर रहे हो और आप खुशी खुशी भर रहे हो, तभी लॉन्ग टर्म है. आपने PPF स्टार्ट किया, आपको पता है 15 साल का ये लॉक इन रहेगा या 15 साल का कमिटमेंट है, बट आप खुशी खुशी वो स्टार्ट करते हो. आपने जब घर खरीदा 10 साल से, वी स्टे इन मुंबई में 10 साल से रियल एस्टेट का उतना कुछ रिटर्न्स नहीं मिला है, बट नो वन इज ऐसा कि मुझे रिटर्न्स नहीं मिला है यार, क्या हुआ. और सेम जब फीलिंग बैड अबाउट इट. यस, करेक्ट. एंड सेम चीज जब म्यूचुअल फंड्स में आता है, 10 दिन में पोर्टफोलियो चेक करते हैं, 10 दिन में देखते हैं अरे यार ये बड़ा नहीं है. नॉट इफ लॉस नहीं आया, उसको रिटर्न्स भी सिर्फ थोड़ा ही आया रहेगा ना, फिर भी वो खुद दुखी रहेगा कि 10 दिन में नहीं मिला है, 10 महीने में मुझे रिटर्न्स कैसे नहीं मिला. वो एवरी मंथ चेक करेगा. सो दिस इज अ बिहेवियरल इम्पैक्ट. बिहेवियर अगर अच्छा कर दिया ना, आपको रिटर्न्स पक्का मिलने वाला है. बिकॉज आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देख लो, टोटल 200 to 400 फंड मैनेजर्स है, इक्विटी फंड मैनेजर्स. ईच एंड एवरी फंड मैनेजर AMC के पास जॉब कर रहा है इवेंचुअली, एंड उसको 1 CR प्लस का ही पे मिल रहा है. मोस्ट ऑफ सब फंड मैनेजर्स 1 CR प्लस अर्न कर रहे हैं.
किसी को जॉब पे 1 CR प्लस का पे मिल रहा है, मतलब उसका फाइनेंस का बैकग्राउंड क्या रहेगा, एक्सपर्टीज क्या रहेगा, True. अभी वो तो अच्छा ही डिलीवर करने वाला है। Yeah, true. अगर आपको नहीं मिला मतलब आपने कहीं ना कहीं बिहेवियर में Correct. गलती की है। Yeah, आज understood. 1000 इक्विटी फंड्स रह गए, आप देख लो बैक टेस्ट करके, किसी ने भी 10 साल तक इन्वेस्ट किया हो, एक भी ऐसा पर्सन नहीं रहेगा जिसने लॉस किया रहेगा। Yeah. वो टाइम करने जाते वहीं सारा ट्रू, टाइम देने रेडी नहीं है, वो शॉर्ट टर्म एंगल ही सोचते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो वो दैट इज बिहेवियरल थिंग जहाँ पे हम लोग बहुत वर्क करते हैं। Correct. मैंने जो रिस्क प्रोफाइलिंग बोला, उसको जब रियलाइज करवा कि आपकी गोल ही लॉन्ग टर्म है, आपको क्यों सोचना है 10 महीने का, आपको 10 महीने का वेकेशन के लिए सोचना है, ठीक है, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म रखो, वो फंड ही अलग रखो, और थोड़ा पैसा जो रिटायरमेंट के लिए रखा है वो रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचो। उसमें सोचो ही मत कि 2 साल में क्या रिटर्न्स मिला। मैं फर्स्ट डे बोलता हूँ लॉसेस भी दिखेंगे 2-4 साल में, आप अगर लॉसेस से डर रहे हो मत जाओ इक्विटी में। सही बात। मेंटल अकाउंटिंग करके एक कंसेप्ट आपको पता है? नहीं, प्लीज So, समझ गया बोलने से, बट आई लाइक टू एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपका कोई फेवरेट कॉन्सर्ट अभी जो मुंबई में हुआ रहेगा, कोई भी एक आर्टिस्ट, अरिजीत सिंह का समझो बीकेसी में अभी कॉन्सर्ट हुआ था, उसका टिकट समझो एग्जांपल 10,000 का था, हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। आपने वो टिकट खरीद लिया, आप कॉन्सर्ट पे पहुंच गए, बीकेसी वो गेट पे हो, उस दिन आप एक टिकट लेके गए हो अरिजीत सिंह का जो आपने बाई किया, और आपके वॉलेट में 10,000 रुपीज़ कैश लेके गए हो। जैसे ही आप गेट पे पहुंचते हो, समझो कि वो आपका वॉलेट गुम हो गया, कहीं चोरी हो गया या गुम हो गया, पता नहीं, आपको अभी मिल रहा नहीं है, एंड आपका 10,000 रुपीज़ का कैश लॉस हो गया। अभी आपके पास वो टिकट है अरिजीत सिंह का, एंड उधर कोई दूसरा पर्सन बाई करने भी रेडी है 10,000 रुपीज़ में ये टिकट। क्या आप वो टिकट सेल कर दोगे कि आप वो कॉन्सर्ट एंजॉय करोगे जिसके लिए आपने पे किया था? कॉन्सर्ट एंजॉय कर, चांसेस है कॉन्सर्ट एंजॉय करोगे। सेम चीज़, आप वो गेट पे पहुंचे हो, आपका वो टिकट गुम गया, नॉट पैसा गुम गया, वॉलेट आपके पास ही है 10,000 रुपये, बट आपका टिकट गुम गया। अभी आपको दूसरा टिकट 10,000 में ही मिल रहा है, क्या चांसेस है कि आप टिकट बाई करके अंदर जाओगे? दोनों में लॉस तो 10,000 ही है। आपके माइंड ने ना हर एक एक्सपेंस के लिए एक कंपार्टमेंट ऐसा सोचा हुआ है कि इसका ये इतना बजट है, इसका ये इतना बजट है। अभी जब भी सेकंड वाले केस में टिकट गुम हो गया ना, अगर आपने नया टिकट बाई किया ना, तो आप अरिजीत सिंह के शो का कॉस्ट 20,000 गिनोगे, जबकि फर्स्ट केस में भी 10,000 का लॉस हुआ था, 20,000 का खर्चा हुआ आपको अरिजीत सिंह की वजह से, बट आपको फर्स्ट टाइम नहीं लगा, सेकंड टाइम आपको लगा 20,000 का खर्चा हो गया अरिजीत के लिए, तो आप नहीं करोगे। सो दिस इज मेंटल अकाउंटिंग, बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। वैसे हम लोग कंपार्टमेंट्स बना देते हैं कि आपको वेकेशन के लिए या स्मार्ट गैजेट्स के लिए इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसा इसके लिए साइड पे कर दो, फिर आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। मैंने इसके लिए भी रखा है, इसके लिए भी रखा है। आपके 10 गोल्स है, आपको लगता है मैं मुंबई में रहता हूँ यार, मैं घर कैसे खरीदूंगा, मैं इमरजेंसी फंड्स कैसे मैनेज करूंगा, मेडिकल कॉर्पस कैसे मैनेज करूंगा। अभी जब आपने हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना दिया और अलग अलग पैसा अलोकेट कर दिया, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप वो टच भी नहीं करोगे। और एक एग्जांपल दूँ तो, आप पुराने ज़माने में नॉर्मली सब लोग एनवेलप्स में पैसा रखते थे, तो समझो आपने महीने का 1 लाख रुपया, करेक्ट, 1 लाख रुपया आपको कैश मिला, आपने एक घूमने के लिए 10,000 का एक एनवेलप बना दिया, 10,000 का एनवेलप कुछ स्मार्ट गैजेट्स के लिए बना दिया, 10,000 रिटायरमेंट के लिए, 10,000 इमरजेंसी फंड्स के लिए। अभी जब भी आपको नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करना है ना, आपको वेकेशन के कवर को यूज़ नहीं करने वाले हो। नॉर्मली आजकल जो न्यूअर जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, शॉपिंग, यू ओनली लिव वंस, योलो वाला कंसेप्ट है। सो जितना पैसा आया, मेरे 30th को मेरे पास पैसा आया, 5th तक मेरा पैसा यूज़ भी हो गया, मैं पूरा पैसा यूज़ कर लूँगा। जब भी ये चीज़ कर लिया आपने, वेकेशन के लिए, आपके ही घूमने के लिए मैंने अलग करवाया है, आप घूमने जाओ बट उसमें से ही जाओ, फिर चांसेस कम हो जाता है कि आप उसको टच करोगे ड्यूरिंग शॉपिंग। आपने शॉपिंग का भी एक बजट बना दिया है, आप घूमो भी, एंजॉय भी करो, बट फ्यूचर का भी सोचो। तो दिस इज बेसिकली बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। परफेक्ट, नहीं, आई कंप्लीटली एग्री। सो टेल मी राहुल, बहुत रेयरली ऐसे आते होंगे कि जो भाई मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग चालू कर रहा हूँ, तो अब बता एलोकेशन क्या। मोस्टली तो मिड जर्नी से ही आते हैं, राइट? तो तब उस वक्त आइदर समवन इन्वेस्ट लेफ्ट ओवर फंड्स टू म्यूचुअल फंड, जैसे स्पेयर फंड्स बोल सकते, बाकी तो लॉक्ड है इन्वेस्टमेंट, उसे मैं टच नहीं कर सकता, या करते भी है तो भी अपने ही थॉट से करते। सो हाउ यू गाइड देम अबाउट एसेट एलोकेशन की डोंट टेल मी कि इतना ही फंड्स, एज यू सेड कि पहले आप स्टडी करते हो रिस्क वगैरह, तो क्या आप उनके उस बिहेवियर में भी चेंज ला सकते हो कि भाई इतना इसमें रखो, इतना इसमें रखो? सो सी, फर्स्ट चीज़ इज, मेरा जब भी उनको कुछ भी एडवाइजिंग होता है, या एडवाइजिंग बोलो या रिस्क प्रोफाइलिंग का आउटकम बोलो, वो जो रहता है,
इट इज़ अनबायस्ड कि वो मुझे वो नहीं करना है कि उसके पास इतना फंड्स है, चलो वो फंड्स पे मैं टारगेट करता हूँ, वो फंड मुझे सेल करना है, बिकॉज मेरा वो स्ट्रैटेजी नहीं है कि मुझे सेल बेस्ड इन्वेस्टिंग करवाना है. इट इज़ वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग. वैल्यू डिलीवर करूँ, वो क्लाइंट खुद ही कन्वर्ट होगा मुझे. करेक्ट. सो जब भी मैं उनको रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं उनको वो देता ही नहीं हूँ कि भाई आपके पास 10 लाख रुपीस पड़े हैं, अभी उसका क्या करो. आपके पास टोटल पोर्टफोलियो क्या है. तो आप नॉर्मली देखोगे ना, इंडियन हाउसहोल्ड का मुझे डेटा पता है एटलीस्ट, कि उनका 90% एसेट्स तो आज भी ट्रेडिशनल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट और गोल्ड में ही है. एफडीज में भी आज अच्छा खासा पैसा पड़ा है. भले वो लोग को नया एफडीज में सब लोग को मन नहीं है, बट पुराना तो बहुत पड़ा है. इक्विटी या तो म्यूचुअल फंड्स में 5 to 6% या मैक्सिमम 10% ऑफ द एलोकेशन है. अभी एक 10% एलोकेशन के अंदर मैं कौन सा स्कीम लूँ, क्या लूँ, इक्विटी में क्या करूँ. इक्विटी फंड्स अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया कि मुझे इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना है 10 रुपीज़, अभी वो इक्विटी फंड्स 10 में से मैं ये वाला लूँ कि वो वाला लूँ, उस पर ज़्यादा फोकस है. जबकि ईच एंड एवरी इक्विटी फंड ने फिक्स्ड इनकम फंड या उसको बीट किया रहेगा, या रियल एस्टेट के रिटर्न्स को बीट किया रहेगा. वो नहीं देख रहे कि दूसरा 90 को. करेक्ट. तो वो लोग 10% पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो मैं उन लोग को पहले फर्स्ट एडवाइस वो देता हूँ कि इधर से आप कुछ शिफ्ट करो तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ेगा. आप सिर्फ वो एक स्टॉक का रिटर्न देख के क्या मतलब है, या एक स्कीम का रिटर्न देख के क्या मतलब है. ओवरऑल देखना है. सही बात. सो पोर्टफोलियो रिटर्न्स कैसे आपका बेटर हो सकता है, उसके लिए एसेट एलोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एसेट एलोकेशन में पूरा फोकस रहता है मेरा कि वैसा नहीं है कि इक्विटी ही बढ़ाना है. कभी कभी किसी का शॉर्ट टर्म गोल रहेगा तो उनको वो भी एडवाइस आता है कि इक्विटी में से आप डेट साइड शिफ्ट कर दो. आपको शॉर्ट टर्म में समझो घर लेना है 1 साल में, आपने सब पैसा इकट्ठा करके इक्विटी में इन्वेस्ट किया. अभी 1 साल की अनसर्टेनिटी की वजह से आप इक्विटी में मत रखो. अगर अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, आप उधर से सेटिस्फाई रह के डेट साइड मूव कर दो. बट एसेट एलोकेशन इज द ओनली की. आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर का भी सुन लो, वो बोलेगा रादर देन स्कीम सिलेक्शन, एसेट एलोकेशन इज द मेन थिंग जिधर मेजर रिटर्न्स पोर्टफोलियो का डिपेंड करता है. अच्छा, बट प्रैक्टिकली लोग फिर, बिकॉज रियल एस्टेट तो चलो उसको पता भी चला आई शुडंट हैव, बट नाउ दैट आई हैव आई कैन नॉट, वो भी तो एक होता है, लॉस में नहीं बेचूंगा. इमोशंस आते ही है. आई एम नॉट सेइंग कि इमोशन नहीं है. गोल्ड वैसे लिक्विड है, बट गोल्ड में भी इमोशन आ जाता होगा. यू वुड टेल कि अरे गोल्ड से अच्छा इसमें लो. बट and also whether people are maybe open in terms of showing your portfolio which is visible online, but to show someone ki gold mere paas itna pada hai usme, whether they open up also is a question. Maybe each and everyone is not that open. Correct. But if उन लोग को खुद का एसेट एलोकेशन बेटर करना है और खुद के पास उतना You are नॉलेज like नहीं a है, doctor तो to उनको them. देना ही पड़ेगा. अगर आप गए हो, डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, आपने अगर बोला ही नहीं है कि आपको क्या बीमारी है, वो डॉक्टर कैसे सॉल्व करेगा. Correct. तो आपको अगर वो इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन देगा तो ही हम लोग उस हेल्प कर सकेंगे उसको. एंड फ्रैंकली ये इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल है कि आप है ना, जब भी नया घर खरीदोगे, आपने 5 CR का घर खरीद लिया ना मुंबई में, आप फ्रेंड्स को शेयर करने के टाइम पे हिचकिचाओगे भी नहीं. आप बोल दोगे मैंने 5 करोड़ का घर खरीदा. आपने 10 लाख का अगर म्यूचुअल फंड खरीद लिया रहेगा या स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट किया रहेगा ना, ये पता नहीं क्यों इतना टैबू है. लोग शेयर करने के लिए रेडी नहीं है. मतलब अगर मैंने उनको पूछा कि आपने कितना इक्विटीज में इन्वेस्ट किया, मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है. 5 करोड़ का घर लिया और 10 लाख का म्यूचुअल फंड लिया, बट मैंने अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है. जब भी 3 बार पूछ के अमाउंट निकलवाएंगे तो वो बोलेगा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया. अभी वो 10 लाख पे इतना फोकस करेगा कि मेरा रिटर्न ये 10 लाख में से कैसे मैं करोड़पति बन जाऊं ओवरनाइट. और वो 5 करोड़ जो मैंने घर में खरीदा उसका क्या होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट. और वो इन्वेस्टमेंट वाला घर, मैं रहने वाला घर भी नहीं बोल रहा हूँ. जो कंजम्पशन है दैट इज डिफरेंट थिंग. ट्रू. बट जो इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ें है उसमें इतना वैसा इन्वेस्ट करके भी वो लोग ध्यान नहीं देते. तो वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ उन लोग को एजुकेट करने का कि आप ही सोचो कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ पे स्क्यूड है और फिर आप रिटर्न्स कैसे बनाओगे. ट्रू. थोड़े क्लाइंट्स रहते हैं जो नहीं मानते हैं. थोड़ा पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है, वो मेंटालिटी भी रहता है कि नहीं हम लोग रियल एस्टेट और गोल्ड में ही रखेंगे. उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, हेल्प नहीं कर सकता. बिकॉज दे आर कमिंग विद सम बैगेज और सम प्रीकंसीव्ड नोशंस टू. सो टेल मी, आई डोंट नो यू वुड बी कॉल्ड एज जेन जी और जस्ट बिफोर दैट, बट आपके क्लाइंट्स में से द सेम बिहेवियरल फाइनेंस को कैटेगराइज, ऑफ कोर्स ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, but sometimes that category is also we can categorize also that these age people generally behave this way, Gen Z generally behave this. So आपके आपको शॉर्ट एक्सपीरियंस है, आपका क्या अब तक वैसा बिहेवियर है? अच्छा, जस्ट मतलब Gen Z के just हाँ, आई एम मिलेनियल but you would be able to understand Gen Z much better. So क्लाइंट से बेटर ऐसा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है कि
जेंजी लोग का बहुत नॉर्मल बिहेवियर रहता है कि हम लोग 2 महीने में रिटर्न्स बनाना है, क्योंकि अच्छा, ये ऐसा friend वाला है तो उनका, हाँ हाँ, 2 वही महीने के लिए भी है, आते हैं और 5 महीने भी ऐसा मैसेज लेजिट करते हैं कि हम लोग को 5 महीने में पैसा बनाना है। तो मैं बोलता हूँ नहीं बनेगा, उसको लॉन्ग टर्म टाइम देना पड़ता है। तो उन लोग का रहता है नहीं नहीं ये फ्रेंड ने तो बनाया, उसने ये स्टॉक लिया था, ये हो गया। मैं बोला स्टॉक और पोर्टफोलियो को कंपेयर मत करो, म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो है, अभी उसका स्टॉक का अलोकेशन में भी 2% रहेगा, बट उन लोग का ये बिहेवियर रहता है। अभी वो ओवर द पीरियड ही वो लोग मेच्योर हो गए और वो लोग को इवेंचुअली पता चलेगा। मेरा जेंजी या जो भी करियर स्टार्ट करता है उनको फर्स्ट एडवाइस एक ही रहता है, आप लोग मिस्टेक्स करने वाले हो, हाँ, एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल जर्नी में मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स वैसी करो जो कोई आगे जाके करेक्ट कर सके। अगर वैसी मिस्टेक कर दी जो मैं करेक्ट ना कर सकूं, मे बी आपको 5 years बाद रियलाइज हुआ, आज आप मेरे क्लाइंट नहीं बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट 5 साल बाद आपको लगा नहीं मुझे किसी को देना ही पड़ेगा, किसी को हैंडल करने के लिए देना पड़ेगा पोर्टफोलियो, कि वो मुझे बाई सेल या एडवाइस थोड़ा रिकमेंड करे। अभी अगर उसने मुझे उसके बाद पोर्टफोलियो दिया और उसके पास अभी LIC पॉलिसीज ले लिया है, उसने घर खरीद लिया है जिसका EMI आ रहा है, अभी मैं उसको कैसे हेल्प करूँ? करेक्ट, कैसे? तो मैं उनको बोलता हूँ मिस्टेक्स करो चलेगा, एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स उतनी होनी चाहिए जिसको करेक्ट कर सके, हाँ, लॉस में भी बट करेक्ट हो सके वैसी मिस्टेक्स करो। ट्रू ट्रू। आपको एक बार के लिए स्टॉक्स ट्राई किया खुद ने, बट उसके बाद वो एग्जिट तो कर सका, उसने रॉन्ग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर दिया, वो एग्जिट तो कर सका। जबकि उसने अगर एक पॉलिसी ले ली इंश्योरेंस की, एंडोमेंट प्लान 40 years की पॉलिसी है, 3 साल बाद आएगा वो सरेंडर वैल्यू ना के बराबर रहेगा। अभी वो उसका एग्जिट वुड भी या तो 3 साल वाला भूल जा टाइप्स, देन बट वो भूलने कोई रेडी नहीं है, मतलब भले वो रिटर्न्स आगे का मार्जिनल रिटर्न्स भी अच्छा हो ना, फिर भी वो भूलने कोई रेडी नहीं होता। बिहेवियरल इन्वेस्टिंग वापस वही कि इतना लॉस कैसे कर दूं, मैंने 3 साल मेहनत करके कमाया था, इन्वेस्ट किया था। वो पोटेंशियल आप कितना भी कैलकुलेशन बताओ कि उससे अच्छा आगे का लॉस बहुत रेयर, वो बहुत उससे सामने वाला उतना इसका बिहेवियर उतना मेच्योर्ड है, अगर वो रहता तो वो उसमें जाता ही नहीं। तो वो तो चांसेस कम है। ट्रू ट्रू, सो यू हैव टू लिव विद दोस बिहेवियर, बट कीप ऑन shifting those behavior through your education, through one-to-one connects and all. True. So tell me, मतलब जो जेनजी का इन्वेस्टमेंट अगर आता भी है तो थ्रू देयर पेरेंटल गाइडेंस, या यू हैव सीन दैट नहीं आजकल दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड कि बस पगार पूरा खर्चा कर देते? सी मोस्टली तो हाँ फुल एक्सपेंस कर दिया, वैसे तो स्टार्टिंग में रहते ही है, स्टार्ट हुआ करियर तो वो तो स्टार्टिंग में करते ही, बट आफ्टर सम पॉइंट थोड़ा सैलरी इंक्रीज हो गया ना तो वो लोग आते हैं कि नहीं अभी चलो सेविंग्स भी चालू करते हैं। थोड़ा रील्स देख के भी वो लोग को मन होता है चलो फ्रेंड भी सेव कर रहा है मैं भी करता हूँ, बिकॉज़ इन अ वे सोशल मीडिया समटाइम्स हेल्प्स। अभी वो लोग को नॉर्मली उनके पेरेंट्स मेरे तक नहीं पहुंचाते, बिकॉज पेरेंट्स का नॉर्मल फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, और वो लोग का लिटरेसी वही है कि हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते थे, LIC में इन्वेस्ट करते थे, हम लोग PPF में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में। इन टर्म्स ऑफ ओपन माइंड में भी जेन ज़ी आर बेटर, बट दे जस्ट हैव टू वो डिसिप्लिन लाना है। करेक्ट, बिकॉज पेरेंट्स का जो एडवाइस है अभी वो लोग गलत भी नहीं है। वो लोग ने जब LIC लिया था 20 साल पहले या PPF या FD में इन्वेस्ट किया था तभी रेट्स बहुत अलग थे। वो देख के आज इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि तभी रेट अच्छे थे तो आज वो सेम रेट्स नहीं मिल रहे। 20 साल पहले की पॉलिसी में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है लोगों को, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट तभी के रेट्स अलग थे, तभी का पूरा फंडामेंटल्स अलग था। सो जेनजी जब आते हैं नॉर्मली वो लोग ओपन माइंड से आते हैं, सुनते हैं। उन लोग का एक बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि वो लोग एक्सपेंस रेशियो पे मेजर फोकस करते हैं। आई एम नॉट सेइंग एक्सपेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो लोग रील्स देख के डायरेक्ट प्लान्स के पीछे बहुत भागते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप डायरेक्ट प्लान्स में जाओ, बट आपके पास पहले फाइनेंशियल लिटरेसी है उतना कि आप डिसाइड कर सको कौन से स्कीम में जाना है, बिकॉज आज म्यूचुअल फंड में हर टाइप का स्कीम है, शॉर्ट टर्म के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी है। आप सिर्फ पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करोगे कुछ लॉजिक नहीं बनने वाला है, बिकॉज वो लोग बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ले लिया, समझो 25% CAGR मिला उसमें पास्ट 10 years में, उसने वो सोच के ले लिया। अभी समझो नेक्स्ट ईयर में वो 15% भी डिलीवर करेगा ना, उसका एक्सपेक्टेशन 25 था, भले मार्केट ने 10 दिया, ये स्कीम ने 15 दिया, फिर भी वो बंदा क्या देखेगा, मुझे 25 नहीं मिला, और वो उस दिन रिग्रेट में रहेगा, बिकॉज वो लोग ने एक्सपेक्टेशन ही अभी पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे लिया है। सो उन लोग को पास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, वो फर्स्ट चीज़ है। उनको क्या देख के इन्वेस्ट करना है कि स्कीम का फंडामेंटल्स क्या है, स्कीम का फिलोसॉफी क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल कैसा है, फंड मैनेजर कौन है, क्या कर रहा है, कैसे वो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं एज एन EMC, और कौन सा कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद वो डिसाइड करो कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं।
True. शायद वैसा भी हो 2018 में एक मेजर रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम हुआ था, तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स मर्ज हुई थी। शायद आज जो आप स्कीम देख रहे हो 10 साल पहले वो स्कीम ही कुछ अलग थी, वो मर्ज होके आज इसमें आई है, वो कांस्टेंट रीडिंग, वो पता भी नहीं है उनको। True. वो लोग तो सिर्फ आज एप्स इतने इजीली एक्सेसिबल है कि आप कहीं भी देखो आपको पास्ट रिटर्न्स मिल जाएगी। मैंने कोई भी एक मार्केट का ट्रेडिंग ऐप देखा पास्ट 10 ईयर्स में कौन बेस्ट परफॉर्मिंग SIP है, चलो इसमें कर लेता हूँ, क्या लॉजिक है समझा नहीं। एंड सम ऑफ रूल्स लाइक कीप ऑन हियरिंग 50-30-20 या जो भी, जो एक नॉर्मल आप गाइडेंस देना चाहोगे कि एटलीस्ट आप चाहे मेरे पास आओ ना हो, बट ये 3-4 रूल्स हमेशा ध्यान में रहना चाहिए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ये 50-30-20 रूल्स एंड स्टफ जो आए हैं वो सब नॉर्मली वो पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने दिया है कि मास ऑडियंस को भी एक बार के लिए आंसर दे सके, बट आई वुड सजेस्ट हर एक जन के गोल अलग है। एक्चुअली मेरे पास, मैंने जब CA बना उसके बाद जब प्रैक्टिस स्टार्ट की 21-22 के एज पे ही 2 फीमेल क्लाइंट्स थे, दोनों का सेम सैलरी, दोनों CA बन के जॉब कर रहे थे, दोनों का सिमिलर सैलरी था, सिमिलर सेविंग्स एबिलिटी, बट एक जन का गोल था मुझे 1 साल में ही गाड़ी खरीदना ही है, और दूसरे साल 1-2 साल में मेरा शादी होगा उस पर भी मुझे ही खर्चा करना है, पेरेंट्स का खर्चा नहीं होगा। उसके शॉर्ट टर्म गोल्स थे, उसको इक्विटी साइड बहुत कम रखा था। और दूसरा एक क्लाइंट था जिसको शॉर्ट टर्म गोल्स में पेरेंट्स टेक केयर करेंगे, मुझे सिर्फ लॉन्ग टर्म का सोचना है। अभी उसके लिए शायद 80-90% पोर्टफोलियो इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेगा, और फर्स्ट वाले क्लाइंट में शायद 10 या 15% ही इक्विटी में रहेगा। दोनों सेम एज, सेम क्राइटेरिया, बट वो हम लोग रूल वाइज नहीं जा सकते। रादर हर एक जन का नीड अलग है, किसी को लॉन्ग टर्म का सोचना है, किसी को शॉर्ट टर्म का सोचना है, ट्रू, तो उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करना। बट देन गोल गाइडेंस पे आप नहीं जाते हो कि अरे तूने इतना नहीं खर्चा करना चाहिए इसमें, बिकॉज दैट देन बिकम्स पेरेंटल टाइप ऑफ थिंग, राइट? बहुत रेयरली आई गो इन दैट, प्रोवाइडेड अभी एक क्लाइंट है जिसने, सब लोग ने बोला कि कार नॉर्मली EMI पे खरीदना चाहिए, बहुत सारे CS भी एडवाइस करते हैं, तो फिर आपको कंपनी में एक्सपेंस मिलेगा एंड सब, ये नॉर्मल चीज़ है। अभी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ भी नहीं है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, बट उसने खुद का बैलेंस शीट देख, जब भी मैंने बनाया उसने ना फिक्स्ड इनकम साइड इन्वेस्ट किया है, ना इक्विटी साइड, ना गोल्ड साइड, ना रियल एस्टेट साइड, उसने सिर्फ बैंक में रखा है जो भी पैसा आ रहा है, और सामने एक लोन ले लिया गाड़ी के लिए, बिकॉज वो गाड़ी के लोन में बिजनेस में एक्सपेंस मिलेगा। मैंने बोला एक्सपेंस तो मिलेगा, बट आपको इवेंचुअली क्या बेनिफिट मिल रहा है? मतलब आप इतना इंटरेस्ट बेयर कर रहे हो 9% या 10% इंटरेस्ट, और आप सामने अर्न तो नहीं कर रहे हो सेविंग्स बैंक में। रादर देन दैट आप वो लोन रिपे कर दो, आपका अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो वैसा एडवाइस देता हूँ। उसका EMI कम करवा दिया, EMI बंद करवा दिया, और वो पैसा इन्वेस्टिंग साइड लेके गया, वैसा एडवाइस देता हूँ। पेरेंटल साइड उतना टच नहीं करता। करेक्ट, कोई ही क्लाइंट वैसे रहते हैं जो पूरा का पूरा खर्चा कर रहे हैं, उनको बोलना पड़ता है भाई इतना मत खर्चा करो। बट नॉर्मल लाइफस्टाइल तो सब लोग को जीना है। अगर मैं 1 लाख का अर्न कर रहा हूँ और मैं 20,000 का एक्सपेंस कर रहा हूँ, नॉर्मल है, ठीक है। आपको वो एंजॉय भी करना है और गोल्स भी मीट करना है, तो कंजूस भी नहीं बनाते हम क्लाइंट्स को। तो सही बात है। और बैलेंस इन्वेस्टमेंट से भी तो इतना, एज यू सेड, उससे अच्छा अगर एसेट एलोकेशन से वही चीज़ निकल के आती है तो उनकी लाइफस्टाइल क्यों चेंज करा? उससे तो अच्छा अगर एसेट एलोकेशन वाली समझ 10% भी आ गई तो उसमें से उनके गोल निकल जाएंगे। सो एनी गाइडेंस टू समवन से CA और एनी वन हु बिलीव्स नहीं मुझे ही करना है मैनेज, तो हाउ ही शुड स्टार्ट? सो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट चीज़ वो देख लो, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, प्योर टर्म लाइफ कवर आपका सफिशिएंट है कि नहीं, एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास एडिक्वेट है कि नहीं। ये सबसे कंपलसरी चीज़ है, एंड इट शुड बी सेपरेट, नो यूलिप प्लान्स। यस, एकदम सेपरेट, प्योर टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, एंड अच्छे टर्म्स होने चाहिए। नॉर्मली आप अब्रॉड देखोगे ये कंपलसरी गवर्नमेंट के एंड से रहता है, अपने एंड से इधर वो नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट इट इज़ अ कंपलसरी प्रोडक्ट जो हर एक जन के पास होना चाहिए, एंड इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। जो सब लोग को चूकता है एक्चुअल में देखोगे बाहर इससे बहुत ज़्यादा महंगा है। सो आई वुड सजेस्ट वो फर्स्ट चीज़ होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिंग साइड पे जब आते हो, आपको फर्स्ट लिस्ट डाउन करना है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स कितने हैं, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आपको कितने पैसे लगने वाले हैं। उसके लिए आपका प्रोविजंस जो भी रहेगा, इट कैन बी द करंट एसेट्स और इट कैन बी द कैश फ्लो, वो सब आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग ही करना है, दैट इज थ्रू फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। वहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स लिख लो कि आपको कितना चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे। आपको लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल बाद के कोई गोल है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड का एजुकेशन आने वाला है, चाइल्ड के मैरिज के लिए, जो भी पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म गोल्स है वो लिख लो, एंड उसमें कितना पैसा लगेगा उसका जो प्रोविजनिंग होना चाहिए वो आपका पूरा इक्विटी साइड ही जाना चाहिए। वो आपको फर्स्ट 5 ईयर्स भूल जाना है। मैं भूल जाना है क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक स्टोरी के थ्रू एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का था,
उसने पापा को बोला चलो ना हम लोग आम लेने जाते हैं। पापा ने बोला आम बहुत महंगे हैं। तो उसने बोला एक काम करते चलो ना आम का पेड़ डालते फिर हम लोग को फ्री में आम मिलेगा। तो पापा ने बोला चलो अच्छा आइडिया है। वो लोग गए, वो लोग आम के सीड्स लेके आए। वो लोग ने अपनी जो फार्म हाउस जैसा था उधर आम के सीड्स डाले, करेक्ट, मिट्टी डाला एंड पानी डालते गए। एवरी डे वो लड़का पानी डाल रहा था। 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, थोड़ा भी प्लांट बाहर नहीं आया। तो वो अपने पापा को बोलता है पापा कुछ तो गलत हुआ है, हम लोग का ये प्लांट आ रहा क्यों नहीं है बाहर। तो पापा ने बोला तू सब कुछ बराबर कर रहा है। तो उसने बोला हाँ मैं तो सब बराबर कर रहा हूँ। तो उसने पूछा कि हर रोज़ पानी डाल रहा है तू उसको। बोल रहा है हाँ मैं एवरी डे पानी डालता हूँ। पूछा मट्टी तूने बराबर से अच्छा वाला डाला हुआ है। बोला हाँ बेस्ट वाला मट्टी जो आपको चाहिए वो वाला डाला हुआ है। बोला तो फिर वो सीड बराबर है। बोलता हाँ सीड भी एकदम बराबर है। पापा पूछते तुझे कैसे पता कि सीड बराबर है। तो बोला मैं एवरी डे निकाल के उसको चेक करता हूँ सीड बराबर है और फिर वापस डाल देता हूँ। तो उसके बाद बोलते हैं इसीलिए वो ग्रो नहीं हो रहा है बिकॉज तू हर रोज उसको टच कर रहा है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी सब लोग को इक्विटीज जब इन्वेस्ट किया एवरी डे चेक करना है, एवरी डे हर एक जन को पूछना है। जब भी आपका फैमिली टाइम रहेगा आप देखो आधा फैमिली टाइम तो आपका स्टॉक मार्केट में निकलता है। आप जाके पूछते हो कौन सा स्टॉक खरीदूं, इसको बेचूं, इसको रखूं, और हर एक चीज में रिग्रेट ही रखते हैं। अगर मैंने पर्टिकुलर स्टॉक खरीदा, वो स्टॉक ऊपर गया तो रिग्रेट है मैंने ज़्यादा क्यों नहीं बाई किया। अगर वो नीचे गया तो मैंने वेट क्यों नहीं किया, इसका रिग्रेट है। मतलब वो खुशी तो कहीं मिल ही नहीं रही है, बट फैमिली टाइम भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। वो लोग को इंटेंजिबल टाइम का वैल्यू कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये चीज़ एवरी डे बिकॉज टच करते रहते हैं, पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं, एवरी डे वो लोग स्विच करते रहते हैं। ये चीज़ से बाहर आना है और लॉन्ग टर्म सोचना है, विजन लॉन्ग टर्म। जब भी इन्वेस्ट किया इक्विटीज म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए उसको भूल जाना है, उसको डाउट नहीं करना है हर रोज, तभी आपका पैसा बनेगा। एक न्यूज़ आर्टिकल था जिसका डेटा था कि सबसे ज़्यादा वेल्थ किसने क्रिएट किया है। तो 2 ही टाइप के इंडिविजुअल्स हैं। एक है जो लोग का कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेटेड ही नहीं था, ना पैन, ना आधार, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल आईडी, ना एड्रेस, कुछ भी अपडेटेड नहीं था। अभी वो लोग को कम्युनिकेशन ही नहीं आया और पता ही नहीं था, भूल गए थे वो लोग एसेट को। और दूसरे थे जिनका डेथ हो गया, उनके इनहेरिटेंस जो भी रह गए उनको पता ही नहीं है कि एसेट क्या है। अभी ये दोनों का पैसा क्यों बना, बिकॉज उन्होंने दोनों को भूल गए। हम लोग का सबसे बड़ा तकलीफ है हम लोग भूलने ही रेडी नहीं है। इक्विटी में जब इन्वेस्ट करते हो, मेरा फर्स्ट एडवाइस है उसको भूल जाओ, उसको एवरीडे डाउट मत करो, उसको ग्रो होने दो। वो बड़ा होगा आम का पेड़ और आपको देगा, अच्छे फ्रूट देगा, बट उसको टच नहीं करना है। उसको सिर्फ नॉर्मल हम लोग को डिसिप्लिन से प्रोसेस, जो पानी डाल रहे हैं, जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है हर कोई आपको रिटर्न दे देगा। करेक्ट, आपको अपना बिहेवियर, करेक्ट, आपको पानी अच्छे से डालना है, विच इज थ्रू SIPs। आपको टॉपअप करना है, टॉपअप करते टाइम वो नहीं देखना है कितना रिटर्न मिला तो ही टॉपअप करो, वरना दूसरा स्कीम देखते हैं। हर रोज नया नया विश नहीं करना है। ट्रू। वरना तो जिम ट्रेनर है, नॉर्मली वो हर रोज आपको सेम चीज बोलता है कि आपको ये अच्छा चीज खाना है, आपको ये बाहर का चीजें नहीं खानी है, बटर नहीं खाना है, चीज नहीं खाना है, आपको पनीर खाना है। सेम चीज बोलता है। 10 साल पहले भी सेम चीज था, आज भी सेम चीज था। आपको जिम ट्रेनर का जरूरत क्यों पड़ता है? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर ही डिसिप्लिन मानता ही नहीं है। वो एवरीडे आपको वो डिसिप्लिन से, जब आप बाहर जा रहे हो वापस डिसिप्लिन पे ला रहा है। सेम वे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको हर रोज नया प्रोडक्ट नहीं दिखाने वाला है। वो आपको जो प्रोडक्ट आपने लिया है, आप हर रोज जब डाउट करोगे वो आपको सिर्फ बोलेगा नहीं वो प्रोडक्ट बराबर है। उसका काम एक्चुअल में सिर्फ उतना ही है एक्चुअली, एंड आपका पैसा खुद ही ग्रो होने वाला है। एक्चुअली आपको वो सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपको भूलना रेडी है, मतलब भूल जाना है वो पैसे को, तो फिर आपका पैसा बनेगा पक्का। ट्रू। एंड एनी क्लोजिंग थॉट्स और एडवाइस टू समवन हु विशेस टू बी अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लाइक यू? कैसे चालू करें? पहले कुछ एक्सपीरियंस ले आई, they can straight away start. थोड़ा एक्सपीरियंस ऑपरेशन साइड एंड नॉलेज अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जब स्टार्ट करोगे फिर वैसा नहीं होना चाहिए अभी क्या करूँ। थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद दे कैन स्टार्ट। द ओनली थिंग इज उन लोग को क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच रखना है। ये बोलते सब लोग हैं, लिखते सब लोग हैं मे बी प्रोफाइल में, बट वो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड करते टाइम है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि इट इज़ इवन फ्रॉम द AMC's एंड, वो लोग भी कभी कभी पुश करते हैं कि वो लोग भी वैसे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जिसमें ज़्यादा कमीशन है, और सब लोग को मन हो जाता है अरे यार ये प्रोडक्ट बेचते हैं ज़्यादा कमीशन है इसलिए। बट वो तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हें वो सोचना है क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिशियल है। लिक्विड फंड्स में उतना नहीं मिलता कमीशन, बट वो अगर क्लाइंट के लिए एक्चुअल एडवाइस है तो हाँ उसको वो ही दो। फिर अपना अर्निंग्स मत सोचो, वो अपना अर्निंग्स आ जाएगा। आप वैल्यू डिलीवर करो, 100% अर्निंग्स ग्रो होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। 70 लाख करोड़ का आज के दिन है, तो उसमें आप आराम से ग्रो कर सकते हो, पेनिट्रेट कर सकते हो, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। ट्रू। थैंक्स। इट वाज ग्रेट लर्निंग एंड एक्सीलेंट सेशन। आई एम श्योर हम लोग ने बहुत सीखा, इवन इन शॉर्ट
span of time. You have a tremendous knowledge about finance. Wish you all the best Thank you, Vishal and bhai. hope to see you soon. Thank you. Thank you.